भगवान चीनी उन्हीं के कप में डालेगा जिनका कप दूध से भरा हुआ होगा। आप खाली मग्गा लेके टनटनाते रहोगे, एक आध बार तरस खा के वो दाने डाल भी देगा, बट लाइफ एक मीडियोकर बन के निकल जाएगी। क्लास 9 तक हम इतने शाय थे कि अगर हमारी टीचर्स हमसे आंसर्स पूछती थी तो आंसर हमें आता था, हमारे मुंह पे होता था, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे ओरली। आई यूज्ड टू बी सो नर्वस। मेरी इस पूरी जर्नी में जिस एक चीज ने मेरी बहुत मदद करी है वो है मेरा कम्युनिकेशन, मेरी शायद कमांड ओवर द लैंग्वेज। जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट से भी फॉलो करवाती हूँ, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। My conversation with life. Why are you so difficult? Life smiles and says, Baba, you people don't appreciate easy things. Cut to my conversation with God. Why do I lack so much? You lack nothing. Use what I gave you. Hello, Namaskar. I'm Shubhra Chaturvedi, an edupreneur by profession, director of a Skills Development Institute, a fashion model by passion, a published author, and a research scholar. I was fortunate and blessed enough to have been raised by parents who were very, very liberal and progressive, and they gave me an environment which was free of societal pressure and stereotypes. My dad retired as a judge of Allahabad High Court. My mother is the best homemaker. My parents, especially my mother, always insisted and wanted me to be very, very independent. And that is what I feel I have grown up to be. There was no discrimination between boys and girls. There was no discrimination between me and my brother. Thoda bahut to ladka ladki mein hota hai. I think that is, a part of every Indian household. But I feel I have a very strong voice and a very, very independent thinking, and that has only strengthened over the period of time. I think I have my own mind and I make my own choices. But this was not very easy. Shubhra was not always like this. The talkative, flamboyant Shubhra standing in front of all of you was a very, very shy girl. Class 9 तक हम इतने shy थे कि अगर हमारी teachers हमसे answers पूछती थी तो answer हमें आता था, हमारे मुंह पे होता था, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे orally. I used to be so nervous. And seeing my friends do better than me academically and in extracurricular activities, actually it made me, doubt my own potential. फिर एक दिन मेरी माँ ने, she took a stand. She was very sure of the hard work that she had put in on my communication skills during my formative years. And she insisted on me participating in this elocution competition. And that incident actually resonates with me क्योंकि वो एक ऐसा time था जब मैंने पहली बार realize किया था that I am very, very comfortable and happy unleashing my oratory skills in front of others. And as luck would have it, I went on to win that elocution and then debates after debates, and very soon Shubhra was everywhere in the school to the extent of representing her school in the inter-school debate competitions and eventually winning it. वैसे मेरे बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में एज अ स्टूडेंट इसके अलावा अप्स और डाउन्स नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल शेयर करना है जिससे शायद ये वीडियो देखने वाले, इस टॉक को सुनने वाले लोग कुछ सीख पाएं, समझ पाएं कि फेलियर इज ऑलवेज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस। मेरे इस फेलियर ने मेरा पर्सपेक्टिव मेरे बारे में बदल के रख दिया था। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, Prayagraj. I come from a tier 2 city, which is Prayagraj. And I was always, probably I have it in my genes, I had a very bold style statement. So I had ideas, but I did not have the opportunities to execute those ideas. Allahabad, मेरा शहर, मेरी जान, मेरी पहचान, मेरा सम्मान, इसने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे नंबर 1 होने का सपना इसने पूरा किया है। कैसे? First plus size model of not only Allahabad but from UP. And in a city where making people understand the concept of plus size was very, very difficult. It was another challenge that I had to face. First educator to get the National Education Leadership Award for Excellence in Teaching English, and I was the youngest educator representing my state in Kolkata. First educator to get the Best Personality Development and Spoken English Trainer, Global Icon Award for the Best Spoken Trainer in the entire state. But like I said, मैं फर्स्ट थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फेल नहीं किया है. I have failed and I have failed miserably. A few years back, I was at a crossroads where I had to take this life-altering decision of walking out of a relationship that had reached a point where it was beyond repair. Right? And my emotional turmoil did not end with that relationship. I had almost slipped into depression, but I could come out of it and fight the odds only because of the support of my friends and family members. यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये एक दूसरा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का जिसने मेरा लाइफ के लिए, मेरे खुद के बारे में एक डेफिनेशन, एक पर्सपेक्टिव बदल के रख दिया था.
वो कहते हैं ना, बहुत कुछ लिखा है ऊपर वाले ने तेरी तकदीर में, आप कोशिश करते जाओ, वो संभालता जाएगा। और शायद मैंने भी यही किया, मैं कोशिश करती चली गई और ऊपर वाले का शुक्र है कि वो संभालता चला गया। मेरी इस पूरी जर्नी में जिस एक चीज ने मेरी बहुत मदद करी है वो है मेरा कम्युनिकेशन, मेरी शायद कमांड ओवर द लैंग्वेज, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, मेरे स्टूडेंट्स और मेरा काम, जैसा कि मैंने कहा। और मैं मोर देन 15 ईयर्स से अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली इंग्लिश सिखा रही हूं यहां पर इलाहाबाद में। एंड मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात कहती हूं कि इंग्लिश इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस। प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दो कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो आप किसी से कम हो। सेल्फ डाउट, एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, दीज आर अनइनवाइटेड गेस्ट्स यार। कीप फेथ इन योर सेल्फ। But we need to understand that English is a global language. It is an international language. It is the only language that is keeping you connected to the old world. इसलिए English पे command होना है तो need of the hour. हम लोग को अच्छा लगे ना लगे, हम लोग को पसंद आए ना आए, but we have to have that command over the language, right? इसके लिए मेरे पास देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है, लेकिन जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट से भी फॉलो करवाती हूँ, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। मुझे लगता है हम सबको एक रेशियो, कोई भी, अगर मैं भी कल को एक नया लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहूं लाइक फ्रेंच और जर्मन, मुझे एक रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रेशियो मतलब अनुपात, रेशियो P अपॉन PC। P मतलब प्रोडक्शन और PC मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा ना। वैसे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में बहुत कुछ जाता है, बट मेरे हिसाब से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपका रेगुलरिटी, आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका प्रैक्टिस और आपका पेशेंस। रेगुलरिटी की बात करें, इसमें बोलना मेरे ख्याल से मुझे लगता है ठीक भी नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमें कोई भी चीज अचीव करनी है लाइफ में, हमें वी हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। हर दिन हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन हमें कोशिश करनी है कि हम पिछली बार से बेहतर हों। और उसके लिए हमें, जैसे इंग्लिश की बात करें, अब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लाइक आई सेड देयर इज नो शॉर्टकट, प्रैक्टिस तो बनती है यार। हाँ, ये जरूर है कि सब कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मुझे लगता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये परफेक्शन आता कैसे है? फिर वही बात, रेगुलरिटी से। कोई भी चीज देखिए, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दिन में 10 वोकैबुलरी पढ़ें और आपको लगे कि आप 10 की 10 अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। एक या दो वर्ड्स उठाइए, एक या दो ऐसे सेंटेंसेस उठाइए जो आपको सच में लगता है कि आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आपको मदद कर सकते हैं, और उनको तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीमेंटेड नहीं हो जाते हैं। और ये मैं आपसे करने को नहीं कह रही हूं, ट्राइड और टेस्टेड है, मैं खुद भी ऐसे ही करती हूं। अगर मुझे कोई नया वर्ड, कोई नया सेंटेंस अपने कोर्स में भी इंट्रोड्यूस करना होता है, मैं उसे तब तक बोलती हूं, तब तक प्रैक्टिस करती हूं जब तक वो मेरे माइंड में सीमेंटेड ना हो जाए, सो दैट अगली बार जब मैं उसे हिंदी में भी बोलने की कोशिश करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से इंग्लिश निकले। फिर आता है मेहनत, हार्ड वर्क। देखिए, हम सबके लिए बहुत आसान है ये कह देना, जब भी कोई सक्सेसफुल होता है फटाक से हम लोग कह देते हैं यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत क्यों अच्छी है? आई टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड जो मैं कहने जा रही हूं, शायद ये बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है। हार्ड वर्क का और किस्मत का एक बहुत खूबसूरत सा कनेक्शन होता है। हार्ड वर्क इज लाइक अ कप ऑफ मिल्क एंड लक इज शुगर। गॉड गिव्स शुगर ओनली टू दोज हु हैव अ कप ऑफ मिल्क। भगवान चीनी उन्हीं के कप में डालेगा जिनका कप दूध से भरा हुआ होगा। आप खाली मग्गा लेके टनटनाते रहोगे, एक आध बार तरस खा के वो दाने डाल भी देगा, बट लाइफ एक मीडियोकर बन के निकल जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि आज की इस कंपेटिटिव एज में कोई भी एक मीडियोकर की लाइफ जीना चाहता है। प्रैक्टिस करिए, हार्डवर्क करिए, एफर्ट डालना पड़ेगा, और एफर्ट आपका अपना होगा, कोई और आपके लिए एफर्ट नहीं कर सकता है। वो एफर्ट देखिए, हम आपको, अगर आप हमसे कोई डायरेक्शन पूछोगे तो हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको मैप बना के दे सकते हैं, हम आपको धक्का दे सकते हैं कि आप उस गाड़ी पे, उस रास्ते पे चलो और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो, बट उस डेस्टिनेशन पे, उस रास्ते पे चल के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना आप ही को है। एफर्ट अल्टीमेटली आप ही को डालना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने क्यों करी? हमें पता है आजकल सब लोग बहुत ज्यादा एक साथ बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी मल्टीटास्किंग एंड इट इज वेरी गुड इफ यू कैन डू इट, राइट? बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा एक भी सेकंड ना मिला है, ना मिलने वाला है। और लोग उसी 24 घंटे में क्या क्या अचीव कर लेते हैं। और आप एक लैंग्वेज को मास्टर करना चाह रहे हो, आप उसकी प्रैक्टिस निकालने के लिए उसको आधा घंटा नहीं दे पा रहे हो दिन में, तो आप बताओ आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ कुछ मिराक्युलस होगा और आप इंग्लिश पे अपनी कमांड बना लोगे? और लास्ट, पेशेंस रखिए।
पेशेंस बहुत जरूरी है. सी नोबडी हैज अ मैजिक स्टिक और अ मैजिक वॉन्ड कि हमने वो घुमाया और सबको इंग्लिश आ गया. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हैव पेशेंस. लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. धीरे धीरे होता है. एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. या आई ऑलवेज टेल एवरीबडी दैट यू नीड टू स्पीक विथ क्लैरिटी so that you are not misunderstood. Speak with confidence so that you are respected, and speak with a killer impact so that people always remember you. और ये सब करने के लिए आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता पे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखिएगा जितना ज्यादा और अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा और अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा. इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा. राइट? Choose not to be a victim of your circumstances. मैं बेचारे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे circumstances ऐसे हैं इसलिए हम नहीं कर पा रहे. I chose not to be a victim of my circumstances. If I was from a small city, I chose to be a trendsetter. मुझे इस बार यहाँ पर एक बात और कहनी है. लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस पे आपका अपना जो बॉडी टाइप है उसको प्लीज एक्सेप्ट करिए. मेरा बॉडी टाइप, इफ आई एम दिस बॉडी टाइप, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ द वे आई एम. आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ इफ द ओशंस दे डोंट apologize for their depth, and if the mountains they don't seek forgiveness for the space they occupy, why should I be apologetic for the way I am? मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ और मैं वैसी बहुत खुश हूँ. Please stop being judgmental about others. Like I said, anxiety, doubt. आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइए. आपको नहीं सोचना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो दूसरों का काम है. आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए. In the end, I'd just like to conclude by saying to everybody कि हमेशा अपने आप से 6-7 चीजें बोलिए जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी, जो मैं खुद अपने आप से बोलती हूँ. I will, I can, I cannot afford to give up. Life is not fair, but I'm going to take it in my stride. I will keep working unless things become easy for me. And everything that happens to me is my responsibility. So I'm going to stop making excuses and stop blaming the circumstances and pave my own way towards success in whatever field you choose. लेकिन और इसके साथ ये बात ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाइए. यू विल ऑलवेज रीप द बेनिफिट्स. थैंक यू. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं. जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स. अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं. और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं. वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे. वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे. मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं. पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए. हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी. आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं.